sorry all for being not able to conduct lecture on Saturday because of some technical problem. You know well that board was not working properly, and so that's why we couldn't conduct it on Saturday. Okay. So today let's move on with the topic. So that is, you can say, hope थोड़ा सा blur नहीं आ रहा ना picture. Okay, okay. Okay. So now, Saturday we are not able to conduct lecture because of the problem that pen was not working on the board. Now let's continue today. We are continuing with solid state, states of matter. Sorry, states of matter name chapter. We know very well there are three states of matter: solid, liquid, gaseous state, and we have seen the comparative properties of solid, liquid, and gaseous state. तीनों के comparative property हमने discuss कर दिया. इस चैप्टर को तीन सेक्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं. पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू एंटर इनटू द टॉपिक. दूसरा सेक्शन है कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द गैसियस लॉज. और तीसरा पार्ट इस चैप्टर का है जहां पे वी विल डिस्कस सम अप्लाइड पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर डेविएशन फ्रॉम चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, दैट इज गैसियस लॉज, एज वेल एज we'll have some definitions of solid phase, we have some definitions of liquid phase, we have some definitions of gaseous phase related at the end of this chapter. ठीक है. So लास्ट लेक्चर में, मतलब ऑन फ्राइडे, हमने डिस्कस किया था the three states of matter, solid, liquid, and gaseous state, depends upon two major factors. Number one is nothing but thermal energy, and number two is nothing but, you can say, interparticle force of attraction. Interparticle force of attraction, somewhere it is said like that, intermolecular force of attraction, ऐसा भी कहा जाता है. But interparticle force of attraction ज्यादा correct और ज्यादा perfect है. So interparticle force of attraction ये दो factors हैं. There are many factors which are responsible for the states of matter, but these are the two major factors on which these three states of matter depends. तो पहला जो डिस्कस किया हमने, that is nothing but thermal energy, और दूसरा देखा हमने interparticle force of attractions. जहां तक thermal energy की बात आती है, हमने डिस्कस कर चुके हैं कि thermal energy in case of here you can say so as far as thermal energy is concerned, in case of solid state, thermal energy is lowest, and as far as gaseous state is concerned, thermal energy is highest, or in liquid it's moderate. Whereas as far as interparticle force of attractions are concerned, we know it very well, in solids particles are closely spaced, closely packed. That means in case of solid, interparticle force of attractions are strongest one, and in case of gaseous one, interparticle force of attractions are weakest, equal to no. Interparticle force of attractions are very big or equal to no. ये हम discuss कर चुके हैं. Now thing is that already we have discussed the comparative studies, comparative properties of solid, liquid and gaseous state in last lecture. हमने उसका एक चार्ट बना के हमने स्टडी किया था. ठीक है. So अभी before entering into last lecture में हमने थोड़ा सा इसका भी intro दिया था कि there are some measurable properties of the gases. But before that, we'll discuss one of the topic related with that, being there are two factors responsible for the state of matter is nothing but thermal energy, and next nothing but the interparticle force of attraction. ये जो interparticle force of attraction factor है, उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करना, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है. So next topic is nothing but interparticle force of attractions. ठीक है. So let's move to this interparticle force of attractions. So we are here with states of matter. स्टेट्स ऑफ मैटर, हमारे चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज, यू कैन से, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस. ठीक है. इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस मींस, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया गया था कि जहां तक लिक्विड्स की बात आती है, सॉलिड की बात है, सी दिस इज द सॉलिड, दिस इज लिक्विड फेज, एंड दिस इज, यू कैन से, गैसियस फेज. अगर तीन फेज डिस्कस करते हैं हम लोग, say ice, water and water vapors. Here particles are closely packed. Yeah, more scientifically, particles are closely spaced. Here particles are little loose. Particles are little loose in case of liquid phase. Or here particles are free. Particles are free. They move here and there. So particles have random motions here. Even they are free, there isn't any interparticle force of attraction in case of gaseous state. In case of liquid state, interparticle force of attraction is moderate. And in case of solid phase, interparticle force of attractions are strongest. तो इसके अंदर वो strongest होता है. और this is one of the important factor. Interparticle force of attraction is one of the important factor which determine the state of matter. In case
if interparticle force of attractions are strongest, so particles are closely pressed and we are in solid phase. If this interparticle force of attractions are moderate, these are a bit loose, then we are here in liquid phase. And if these interparticle force of attractions are 0, equal to no, we are here in gaseous phase. So interparticle force of attractions matters a lot and they determine the state of the substance. तो इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है कि कौन से टाइप के इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट होते हैं. We have to discuss which type of interparticle force of attractions are present. Okay. अब देखिए ना, इमेजिन कीजिए अगर इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट नहीं होते थे तो हमारे पास लिक्विड और सॉलिड फेज ही नहीं होता था, हमारे पास सिर्फ गैसियस फेज होता था, सिर्फ गैसियस फेज होता था. क्योंकि गैसियस फेज के अंदर हम देखते हैं कि गैसियस फेज के अंदर देयर इजंट एनी इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे कोई इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं है और सारे सब्सटेंसेस फिर गैसियस स्टेट में होते थे. अगर इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता था तो सारे पार्टिकल गैसियस फेज में होते थे, लिक्विड और सॉलिड नहीं होता था. लिक्विड और सॉलिड स्टेट उस कारण से एग्जिस्ट होता है जिसके कारण इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, और इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है इसीलिए हम लोगों को सॉलिड फेज और लिक्विड फेज हम लोगों को मिलता है किसी भी सब्सटेंस का. क्लियर विद दिस? नाउ ये तो क्लियर हुआ कि इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड्स और डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस. नाउ व्हिच टाइप ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर प्रेजेंट, व्हिच टाइप ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर प्रेजेंट. अभी तो यहाँ पे मैं कई बार आपको पार्टिकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपकी बुक के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है, but intermolecular force of attraction is a very specific word and interparticle force of attraction is very broad. क्योंकि किसी भी सॉलिड के अंदर देखते हैं तो सॉलिड कैन बी इन मॉलिक्यूलर स्टेट, सॉलिड कैन बी इन आयोनिक स्टेट, सॉलिड कैन बी इन एटॉमिक स्टेट, एंड दैट्स व्हाई इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जनरल टर्म ज्यादा करेक्ट रहेगा उसके हिसाब से. बट एज पर द बुक अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप लिखते हो तभी भी इट्स वर्क्स, इट्स ओके, नो डाउट एट ऑल. क्लियर? नाउ take an example of water. Water का example लेते हैं हम. This is ice, this is water, and these are vapors. Okay, ये हम जानते हैं. Now thing is that water का molecular formula हम जानते हैं HOH. This is the molecular formula of water, H2O. ठीक है? So two hydrogen atoms and one oxygen atom is attached with a bond. There is a bond. So bond is also one of the phenomena which holds two atoms together, two or more atoms together. तो यहाँ पे bond है. अभी ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला इस तरीके से H2O, ये पहला वाटर मॉलिक्यूल है. सपोज यहाँ पे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस वन. ओके, तो इस केस में ये पहला केस है जहां पे मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स होते हैं, और यहाँ पे दूसरा केस है, सेकंड केस है जहां पे दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स प्रेजेंट है. सो दैट्स व्हाई इट्स राइट कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम कहते हैं तभी भी चलेगा, बिकॉज हियर इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, वाटर एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. ठीक है? सो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा फोर्स इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, कौन सा फोर्स इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, एंड दैट्स व्हाई इट मैटर्स अ लॉट, दैट यू कैन से इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस. नाउ अगर ये दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, molecules kept apart from each other, molecules kept apart from each other, they are far away from each other, and that's why they wander here and there, they are free to move. और ऐसा होता है कि it's difficult to have the liquid phase or difficult to have a solid phase, so that's why कोई ना कोई फोर्स उनके बीच में प्रेजेंट होता है, and that's why they are held together, और जिसके कारण फिर हम लोगों को वाटर मतलब लिक्विड और सॉलिड फेज मिलता है. अभी डिस्कस करने की बात इंटरेस्ट की है कि कौन से फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो देयर आर 5 टाइप ऑफ फोर्सेस व्हाट वी डिस्कस हियर. इस चैप्टर में हम 5 फोर्सेस देखते हैं जो इसके लिए रिस्पांसिबल है, खास करके दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण सॉलिड लिक्विड फेज मिलता है. सो देयर आर 5 फोर्सेस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस चैप्टर. सो इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस. क्लियर? सो वी हैव डिस्कस्ड 5 फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट हियर इन दिस वन. सो लेट्स डिस्कस दिस 5 फोर्सेस. इंटरपार्टिकुलर ओके, सो अब देखिए उसमें से हम पहले की बात करते हैं. तो पहले का नाम है डायपोल, डायपोल इंटरैक्शन. डायपोल डायपोल इंटरैक्शन ये पहला फोर्स है. दूसरा फोर्स है डायपोल नॉन डायपोल इंटरैक्शन. तीसरा यू कैन से dipole induced interaction. Fourth one, iron dipole interaction. And fifth one, that is you can say London forces.
ओके, लंदन फोर्सेस डिस्कस करना है, एक्सक्यूज मी। So next is you can say London forces, and one is you can say hydrogen bonding. Hydrogen bonding. Okay, these are the forces what we can see here. So these are the forces. We have to discuss actually 5. So ये जो है dipole, non-dipole, that means you can have dipole induced. इसके अंदर हम उसे cover कर सकते हैं. ये दोनों एक ही टाइप के हैं. So आप इसे हटा दीजिए. So 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कर सकते हैं because वो दोनों एक ही इसमें cover हो जाएंगे. वही है. So now dipole interaction. ये पहला force सकते हैं. These are the 5 type of forces which are present here. You can say interparticle force of attraction. Interparticle force of attraction. So we'll have dipole interaction first. पहला डिस्कस करते हैं कि क्या है dipole interactions. ठीक है. So let's have some example. One example. We have molecule HCl, and here is the another HCl molecule. And there is a force of attraction between them. Scenario. पहला HCl molecule है hydrogen chloride. यहाँ पे दूसरा molecule है. This is also called as hydrogen chloride. So there is a bond between this hydrogen chloride. दोनों के बीच में एक bond होता है. And that bond is nothing but the dipole interaction. अब ये डाइपोल क्या है एक्चुअली, वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज दिस डाइपोल। तो पहले डाइपोल फिनोमेना डिस्कस करते हैं, फिर डाइपोल इंटरेक्शन क्या है ये समझ में आएगा। सो एक मॉलिक्यूल जो है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड आप जानते हो H and Cl, दिस इज द मॉलिक्यूल HCl, ये मॉलिक्यूल हम अच्छी तरह जानते हैं HCl। नाउ हाइड्रोजन क्लोराइड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों का बना है। सो दिस इज हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज क्लोरीन एटम। सो पीरियोडिक टेबल में अगर हम डिस्कस करते हैं तो हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल अगर याद आ रहा है आपको, आपने स्कूल में 10 में भी देखा था और अभी भी 11th में हमें डिस्कस करना है उसके अंदर। तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स रखे गए हैं। पीरियोडिक टेबल इज वेरी सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। उसके अंदर हाइड्रोजन मेटल की तरफ आता है, ओके। और सारे मेटल की एक टेंडेंसी होती है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड आप जानते हो, वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स आर नोन एज योर पीरियड्स। तो उसके नाम डिस्कस करते हैं कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करते हैं, हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एवरी मेटल हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड एवरी नॉन मेटल हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सो नॉन मेटल क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस ट्राई टू गेन द इलेक्ट्रॉन and metal generally lose electron। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। दो टाइप के बॉन्ड होते हैं मेनली, कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। होता क्या है कि हाइड्रोजन शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दोनों के बीच में बॉन्ड तैयार होता है। सी बॉन्ड का डेफिनेशन भी हमें है एक्चुअली, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड नाम का और केमिकल बॉन्डिंग नाम का जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसके अंदर है। बॉन्ड क्या होता है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड। बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड। और बॉन्ड तैयार होने के कई सारे मैकेनिज्म है, कई सारे तरीके, कई सारे टाइप है। उसमें से दो मेन टाइप है। पहला कोवैलेंट बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में कोवैलेंट नाम का बॉन्ड है। वो बॉन्ड क्या कैसे बनता है? तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और फिर उनके बीच में बॉन्ड तैयार होता है। और जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। सो इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है ना। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसका मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन की पेयर है, जोड़ी है, वो बीच में होनी चाहिए, बिकॉज ये किसी एक की नहीं है। ये दो में से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया है, हाइड्रोजन ने दिया है, तो ये सेंटर में होनी चाहिए। लेकिन क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब क्लोरीन हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लोरीन खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को, और हाइड्रोजन भी खींचना चाहता है। एक्चुअली एवरी एटम इन पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट नोबल गैसेस ट्राई टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, बट पावर अलग अलग है। दोनों में कंपेयर करते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम है।
तो ये टग ऑफ वॉर है ना, टग ऑफ वॉर है, हमने रस्सी खींचने का काम करते हैं, दो ग्रुप में स्कूल में खेले हम लोग इस टाइप का गेम। तो ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की कोशिश करता है, हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की कोशिश करता है। क्लोरीन की ताकत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ी सी क्लोरीन की तरफ जाती है, पूरी तरह नहीं जाती, ध्यान रखिएगा, पूरी तरह इलेक्ट्रॉन पेयर इधर नहीं जाता, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ चला जाता, जो कि सेंटर में चाहिए था थोड़ा इधर चला जाता है। तो नेक्स्ट पिक्चर ऐसा मिलता है HCl, ये सेंटर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा इस तरफ चला जाता है, थोड़ा इस तरफ चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर विच वाज एक्सपेक्टेड टू लाई एट द सेंटर थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ चला जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जो सेंटर में होना जरूरी थी वो थोड़ी सी क्लोरीन की तरफ चली जाती है। तो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ता है, क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ता है। तो क्लोरीन एज अ न्यूट्रल एटम, एज अ एटम, सिंगल एटम इज न्यूट्रल, बट उसके ऊपर थोड़ा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा उसकी तरफ आ गया, तो इसके कारण क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, थोड़ा सा आता है, उसे कहा जाता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। द रीजन बिहाइंड दैट, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर गया और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा नजदीक आया, समझ रहे हैं आप लोग? ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो सेंटर में होना एक्सपेक्टेड है, लेकिन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मतलब ये एटम भी इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है, ये एटम भी इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है, जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कहा जाता है। सो दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन का पेयर सेंटर में होने के बजाय थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ चला जाता है, तो इसके कारण क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ता है। इस टग ऑफ वॉर में क्लोरीन इज अ विनर बिकॉज इट हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर। सो क्लोरीन के ऊपर डेंसिटी बढ़ता है इलेक्ट्रॉन का, तो क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज तैयार होता है। डेल्टा का मतलब है छोटा सा, थोड़ा सा चार्ज। अगर हम ऐसा नेगेटिव लिखते हैं, ऐसा नेगेटिव लिखते हो तो नेगेटिव का मतलब यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब 1 नेगेटिव चार्ज होता है, और जब 1 नहीं होता तो इसका मतलब है छोटा सा, ये 1 से कम है, बहुत छोटा होता है डेल्टा चार्ज यहाँ पे, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होता है। और जब यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ चला गया है उतना हाइड्रोजन से दूर चला जाता है। दैट्स व्हाई इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर इतना ही पॉजिटिव चार्ज तैयार होता है। So that is what we can say. Here delta positive charge is created, delta negative charge is created. This is the molecule जो इस तरीके से बनता है, समझ रहे? तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का पूरा मॉलिक्यूल है। अब ये पूरा मॉलिक्यूल पहले हम लोग ऐसा लिखते हैं, देखिए पहले ऐसा लिखते हैं, ऐसा ड्रॉ किया जाता है, लेकिन बाद में ऐसा किया जाता है। रीजन बिहाइंड दैट, इलेक्ट्रॉन के मतलब क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। दैट्स व्हाई ये पूरे मॉलिक्यूल में one end of the molecule becomes negatively charged and another end becomes positively charged. This phenomena called as polarization. This phenomena is called as polarization. दो पोल्स तैयार होते हैं, ये पोल नेगेटिव तैयार होता है, ये पोल पॉजिटिव तैयार होता है, इस फिनोमिना को कहा जाता है पोलराइजेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज पोलैरिटी। दिस इज कॉल्ड एज पोलैरिटी, इसे पोलैरिटी ऐसा कहा जाता है, पोलैरिटी। एंड दिस पोलैरिटी इज मेजर्ड इन डाइपोल। Polarity is measured in dipole, और dipole measure करने का यूनिट है mu, that is you can say mu, और mu is nothing but q into l, mu is nothing but q into l। अभी देखिए वापस एक बार आते हैं, किसी भी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ये मॉलिक्यूल तो है लेकिन हेट्रो एटम मतलब डिफरेंट एटम्स, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन। जब दो डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल तैयार करते हैं तो एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होता है और एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम होता है। जिसका ज्यादा होता है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और जिसका पावर कम होता है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव। तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एंड मॉलिक्यूल के अंदर एक एंड मॉलिक्यूल का बनता है नेगेटिवली चार्ज और दूसरा एंड बनता है पॉजिटिवली चार्ज, दो पोल्स तैयार होते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन, एंड दिस नथिंग मतलब पोलराइजेशन मतलब पोल्स तैयार होना, एंड दिस पोल इज नथिंग, दिस इज कॉल्ड एज पोलैरिटी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज पोलैरिटी, and this polarity is measured in dipole। जैसा कि हम लोगों को फीवर आता है, हमारे बॉडी जब फीवर आता है तो हमारे बॉडी का जो फीवर है हम लोग डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, है ना? तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर का पोलैरिटी वो डायपोल में मेजर किया जाता है, डायपोल में। तो डायपोल इज नथिंग बट ये जो दो पोल बनते हैं उसके कारण उसे डायपोल कहा जाता है, दैट इज द डायपोल। डायपोल में पोलैरिटी मेजर किया जाता है, पोलैरिटी इज मेजर्ड इन डायपोल। और डायपोल का मतलब क्या होता है? डायपोल का मतलब इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, डायपोल इज डिनोटेड बाय म्यू, म्यू से दिखाया जाता है। एंड दिस डायपोल इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ q into l। q is a amount of charge,
इसके ऊपर जो चार्ज आया वो कितना आया, 0.3, 0.4, 0.05, व्हाट एवर दैट, एक से कम है, लेकिन है जो भी चार्ज आया वो चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इधर का और इधर का, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये जो दो चार्जेस है, इस चार्ज का सेंटर और इस चार्ज का सेंटर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज नथिंग बट यू कैन से डाइपोल, दैट इज नथिंग बट द डाइपोल। समझ में आ रहा है? और डाइपोल इज दिस, इसे डाइपोल कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक एंड नेगेटिव बनना और दूसरा एंड पॉजिटिव बनना, उसे कहा जाता है डाइपोल। और डाइपोल का ये फॉर्मूला है Q into L and that is measured in unit debye, that is measured in unit debye, debye unit। जैसा हम लोग किलोग्राम कहते हैं, जैसा हम लोग लीटर कहते हैं, वैसा debye यूनिट आता है। तो डाइपोल मेजर करने का यूनिट कौन सा है? debye यूनिट है। समझ रहे हैं आप लोग? और इस टाइप का मॉलिक्यूल कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल also called as डाइपोल। so this is dipole and dipole interaction we have to discuss। तो डाइपोल इंटरेक्शन के लिए सबसे पहले डाइपोल समझना जरूरी। तो डाइपोल है क्या? Dipole is nothing but the measurement of polarity, and polarity is measured here in dipole. Dipole is nothing but the product of magnitude of the charge into distance between the charges। और ये किस तरीके से डेवलप होता है? इस तरीके से। और ये डेवलप होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? Every atom has the tendency to attract electron towards itself। तो ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और इसी पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कहा जाता है। अभी दो आइटम है, अलग अलग है, किसी का तो कम होगा, किसी का तो ज्यादा होगा। दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्लोरीन का ज्यादा है, तो क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे आपको उसके अंदर मिलते हैं। क्लियर विद दिस? सो दैट इज व्हाट वी कैन से, और दैट इज मेजर्ड इन Q mu is equal to Q into L। और ये डाइपोल दिखाने का तरीका कैसा देखिए, दिखाने का तरीका ऐसा, एरो दिखाया जाता है और यहाँ पे इंटरसेक्ट लगाया जाता है। तो दिस इज द नोटेशन हाउ वी कैन शो द डाइपोल। Aditya, is there any problem? Aditya Salunke? Nice, sir. No, no. Okay, then don't again and again touch to the screen then. Okay. So this is the dipole how we can show it. So ये dipole यहाँ पे दिखाई देता है कि dipole इस तरीके से, इस नोटेशन से दिखाई देता है। तो यहाँ पे dipole का पुल इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन पुल इस तरफ है, तो ये dipole इस तरीके से दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से। It shows the shift of electron pair. Shift of electron pair. ये एरो इस तरफ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचा गया है, क्लोरीन की तरफ खींचा गया है, ऐसा उसका मतलब होता है। दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इंडिकेट्स द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट जो होता है हाइड्रोजन से लेकर क्लोरीन की तरफ, ये एरो दिखाता है। एरो ऐसा निकालेंगे तो रॉन्ग है। एरो अगर हाइड्रोजन की तरफ दिखाते तो रॉन्ग है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कहाँ हुआ है? क्लोरीन की तरफ हुआ है। दैट्स व्हाई इस तरीके से एरो होगा। दिस इज द डाइपोल। तो डाइपोल का ये नोटेशन है, मतलब जिस तरीके से डाइपोल दिखाया जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल में इस तरीके का नोटेशन आएगा तो वो डाइपोल की डायरेक्शन बताता है कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट क्लोरीन की तरफ हो चुका है। क्लियर विद दिस? दिस इज द डाइपोल। अब ये टॉपिक धीरे से सिखाने का कारण है कि ये सारे प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वंस यू अंडरस्टूड दिस डाइपोल, ये सारे प्रॉपर्टीज फिर इजी बनता है। समझ में आ रहा है आपको? सो व्हाट इज एक्चुअली डाइपोल? डाइपोल है क्या एक्चुअली? ये डाइपोल है क्या? डाइपोल इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल। और किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी क्या होता है? जनरली हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आता है। दो एटम डिफरेंट है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर डिफरेंट है, तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव। और सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव कह के नहीं चलेगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा का मतलब है छोटा सा नेगेटिव चार्ज, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज। इसके बदले दूसरा एक एग्जांपल लीजिए, अगर मैं ऐसा H2 मॉलिक्यूल H एंड H लेता हूं, H और H लेता हूं, तो इसमें डाइपोल नहीं होगा, इसमें डाइपोल नहीं होगा। देखिए इसके बीच में भी सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर ना लेफ्ट की तरफ जाएगा ना राइट की तरफ जाएगा। द रीजन बिहाइंड दैट, दोनों हाइड्रोजन एटम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सेम है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइदर गोस टू राइट हैंड साइड नॉर गोस टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स व्हाई दैट लाइज इन द सेंटर। तो इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं आएंगे। O2 का लेते हैं, O ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के अंदर भी है, इस तरफ भी ऑक्सीजन, इस तरफ भी ऑक्सीजन है, भले यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो सेंटर में ही रहेगा, बिकॉज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो एटॉमिक, ये भी एटम सेम है, ये भी एटम सेम है, ये भी एटम सेम है, या देयर इज कॉल्ड एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड दिस इज कॉल्ड एज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो HCl की बात करते हैं, HF की बात करते हैं, HBr की बात करते हैं लाइक दिस वन, या फिर हम लोग CO की बात करते हैं लाइक दिस। इसके बीच में ये हेटेरो एटम्स है। जहां कहीं हेटेरो एटम होगा उसके अंदर पोलैरिटी होगी, दैट इज डाइपोल होगी। भले डाइपोल की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, कुछ मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल बहुत कम होता है, किसके अंदर डाइपोल बहुत ज्यादा होता है, बट डाइपोल होगी जरूर। व्हेन देयर इज अ हेटेरो एटम, डाइपोल होगी जरूर, एंड दैट डाइपोल विल गिव
these different types of forces which are present over there. Clear with this? So everyone got this? Dipole का definition exam में पूछा जा सकता है. तो definition is this. ये लिखा है ना formula, भाई उसका definition है. तो definition क्या है? It is the product of, dipole is the product of magnitude of the charge and the distance between the charges or distance between the center of the charges. ऐसा भी कहा जाता है. This is nothing but the dipole. Dipole is denoted by mu. So mu is Q into L. Q indicates magnitude of the charge. L indicates distance between the charges, and this is nothing but the dipole. And dipole is measured in dBA unit. Dipole is denoted by this arrow pointing towards shift of electron. कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट है उस तरीके से वो दिखाया जाता है. Clear? So hope so everyone got this. This is called as a dipole. इसे dipole कहते हैं. तो अभी देखिए, we have to discuss dipole-dipole interaction. We have to discuss dipole-dipole interaction. So अभी now see, this is the HCl molecule. This is HCl molecule. और इस HCl molecule के अंदर this chlorine has delta negative charge, this hydrogen has delta positive charge. This is the HCl molecule. पहला molecule है. ये HCl molecule दूसरे किसी HCl molecule के कांटेक्ट में आता है. दूसरा HCl molecule यहाँ पे है, this HCl. इसके ऊपर delta negative charge, इसके ऊपर delta positive charge, like this one. ठीक है, ऐसा. So this is the first molecule. This is second molecule. When this molecule having a dipole, अभी इसके ऊपर ये charges तैयार हो चुके हैं, मतलब इसके अंदर dipole है. This is the molecule which has the dipole. Approaches another molecule having the dipole. इसके अंदर भी dipole. Okay. So when one molecule having dipole approaches another molecule having dipole, then negative end of this molecule attracts positive end of another molecule. So ये negative ये positive, that's why they attract each other. This is called as the electrostatic force of attraction. This is called as the electrostatic force of attraction. हम जाना माने जानते हैं. Like charges has repulsion, opposite charges has attraction. So this is negative charge, this is positive charge. मतलब इस मॉलिक्यूल का एक एंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस मॉलिक्यूल का दूसरा एंड जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठा के दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स तैयार होता है. That's why these two molecules are held together. That's why these two molecules are held together, and this is the dipole-dipole interaction. This phenomenon is called dipole-dipole interaction. तो इसका मतलब क्या है? Simply मतलब ये है, whenever one molecule having dipole approaches another molecule having dipole, दोनों मॉलिक्यूल में डायपोल है, और जब दोनों मॉलिक्यूल में डायपोल है और when they approach each other, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, then negative end of one molecule attracts positive end of another molecule, and this phenomena is called, you can say, dipole-dipole interaction. This phenomena is called dipole-dipole interaction. Clear with this? So there are many substances. There is HCl, there is HBr, there is HF, there is ammonia. There are many such molecules are there in which there exists a dipole-dipole interaction. Even water molecule, water में भी dipole होता है, क्योंकि water में भी H2O है, तो उसके अंदर भी negative positive charges है. So there are many substances having the dipole. So whenever one molecule having dipole approaches another molecule having dipole, then they are held together due to electrostatic force of attraction. This phenomenon is called dipole-dipole interaction. Clear with this? Everyone done with this? Next is dipole-induced interaction. Dipole-induced interaction. Okay. Dipole-induced interaction. This is the molecule which has the dipole. This is the molecule which has the dipole. Approaches another molecule with no dipole. Suppose इसके अंदर A भी substance है, या फिर हमारा जो भी है, मानो बेंजीन नाम का substance है. Okay, तो बेंजीन नाम के substance में नहीं होता है dipole, लेकिन मानो कि ये substance है, इसके अंदर dipole नहीं है. So this is the molecule जिसके अंदर dipole है और इसके अंदर dipole नहीं है. Okay, substance A जिसके अंदर dipole already है. Substance B, AB, जिसके अंदर डायपोल नहीं है. So when this molecule approaches this, इसके पास जब आता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे चला जाता है. इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे चला जाता है, तो यहाँ पे टेम्पररी पॉजिटिव चार्ज तैयार होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तैयार होता है. This is called induced dipole. Induced dipole. Okay, induced dipole. मतलब नेचुरली इस मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल नहीं था, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था. इसके अंदर डायपोल इंड्यूस किया किसने? इसने. That's why उसके अंदर डायपोल तैयार हुआ, फिर इसका पॉजिटिव एंड इसका नेगेटिव एंड आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड इंटरैक्शन. एक मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल था, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल नहीं था, लेकिन पहले मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल इंड्यूस किया. से फॉर एग्जांपल अभी आईपीएल का जमाना चल रहा है ना, तो तुम्हें हो सकता है एक दूसरा आईपीएल में ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो और एक दूसरा बहुत ही ज्यादा हो,
तो अगर कोई किसी टीम को आप सपोर्ट करते हो, तुम में से एक दोस्त फोन करके बोलेगा, अरे आज इनका मैच है, चलो देखते हैं, आई एम सपोर्टिंग मुंबई इंडियंस, है ना, वही होता है। दूसरे को देखने का मूड नहीं है, लेकिन आप बोल बोल के उसके दिमाग में भी मूड तैयार होता है आईपीएल देखने का, मुंबई का मैच देखने का, ठीक है, मुंबई की टीम को मैच देखने का। तो इसका मतलब पहले बंदे के दिमाग के अंदर ऑलरेडी पहले से था मैच देखना है, दूसरे के बंदे के दिमाग के अंदर नहीं था, दूसरे बंदे के दिमाग के अंदर पहले ने डाल दिया देखना है मैच, तो उसके दिमाग के अंदर भी आ गया, अभी वो भी आईपीएल देखना शुरू कर दिया, है ना। ऐसा बहुत कम बार होता है कि मेरा दोस्त नहीं देख रहा है तो मैं भी आईपीएल नहीं देखूंगा, लाइक दैट। मैक्सिमम मेरा दोस्त देखा तो मैं भी देखूंगा। सो एक के दिमाग में था, एक के दिमाग में नहीं था, दूसरे के दिमाग के अंदर पहले ने इंड्यूस कर दिया देखना करके, वही फिनोमेना है यहाँ पे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। पहले मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल ऑलरेडी है, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल नहीं है, इसके अंदर डायपोल इंड्यूस किया, टेम्पररी इंड्यूस किया, किसने, पहले मॉलिक्यूल में, एंड देन दे आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बार इसके अंदर डायपोल इंड्यूस हो जाता है तो इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव के साथ हेल्ड होना है, या फिर इसके पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव एंड हेल्ड होना है, like this, but that's why they are held together. This is called as dipole induced dipole interaction. समझ रहे हैं आप लोग। तो एक के अंदर डायपोल था, दूसरे के अंदर डायपोल नहीं था, पहले ने दूसरे के अंदर डायपोल इंड्यूस कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज डायपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन, डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। नाउ तीसरा, दैट इज यू कैन से आयन डायपोल इंटरेक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे घर के अंदर होता है आयन डायपोल इंटरेक्शन। सो दिस इज आयन एंड दिस इज डायपोल, सो देयर इज आयन डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन। अब देखिए हमारे घर के अंदर हम रेगुलरली क्लींसिंग पाउडर यूज करते हैं, मतलब ये निरमा वगैरह जो है ना, कपड़े वगैरह क्लीन करने के लिए हम लोग निरमा, व्हील, अलग अलग देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स, है ना, हम लोग यूज करते हैं, कोई टाइड यूज करता होगा, कोई क्या यूज करता होगा, ये हम लोग ये करते हैं। इनका जो क्लींसिंग एक्शन है वो ये है, आयन डायपोल इंटरेक्शन, उसका क्लींसिंग एक्शन मतलब कपड़े क्लीन करने का एक्शन आयन डायपोल इंटरेक्शन का है, मतलब केमिस्ट्री का ये प्रिंसिपल वो सारे वॉशिंग पाउडर के अंदर यूज किया गया है, सारे जो वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं उसके अंदर ये फिनोमेना यूज किया गया है। कैसे आप देखिए, सपोज हमारे पास NaCl है, NaCl NaCl पानी में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, Na प्लस Cl माइनस मिलेगा। देखिए सोडियम क्लोराइड पानी में पुट किया तो क्या मिला, Na प्लस Cl माइनस मिला। तो यहाँ पे देखिए, सो दिस इज सोडियम प्लस आयन एंड दिस इज यू कैन से Cl माइनस आयन, सेपरेट आउट हो गए। अभी NaCl पानी में डिसॉल्व होता है, NaCl पानी में डिसॉल्व होता है, कैसे डिसॉल्व होता है आप देखिएगा। हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो दिस इज वाटर मॉलिक्यूल से HOH ऐसा है। अभी HOH है, इधर लिखता हूं HOH वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट्स व्हाई इट डेवलप डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन डेवलप डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। हम नॉर्मली हम जो वाटर देखते हैं उस वाटर में ऐसा फिनोमेना होता है, ऐसा ही होता है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन हैज अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन हैज डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और इस वाटर के अंदर हम जब NaCl पुट करते हैं तो होता क्या है, देखिए ऑक्सीजन हैज नेगेटिव, तो दिस नेगेटिव विल फॉर्म बॉन्ड विद पॉजिटिव एंड दिस हाइड्रोजन विल फॉर्म बॉन्ड विद नेगेटिव। सो वाटर मॉलिक्यूल को हम ऐसा निकालते हैं, सपोज दिस इज ऑक्सीजन और दिस इज हाइड्रोजन, ओके, ये O और ये H, दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इस तरीके से निकालते हैं। सो होता क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या होगा, इसके अंदर आएगा, सी दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन फॉर्म्स बॉन्ड विद दिस Na, यहां से वापस ऑक्सीजन या हाइड्रोजन फॉर्म्स बॉन्ड विद Na, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फॉर्म्स बॉन्ड विद Na, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फॉर्म्स बॉन्ड विद Na। ऐसे कितने आ सकते हैं, तो कितने भी आ सकते हैं, दैट सराउंड्स, इसे सराउंड करते हैं पूरा, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, सोडियम गॉट सराउंडेड विद ऑल दिस वन। तो सोडियम के ऊपर जो प्लस चार्ज है उसके कारण ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है उसको अटैच होता है, उसको अटैच होता है। और क्लोरीन के केस में Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज के लिए वाटर का मॉलिक्यूल उल्टा हो जाता है, सी दिस इज ऑक्सीजन और दिस आर द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड तैयार करते हैं, लाइक दिस वन इधर। सो दिस इज ऑक्सीजन, दिस आर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉर्म बॉन्ड विद क्लोरीन, सो दिस इज यू कैन से, समझ रहे हैं सब लोग, लाइक दिस वन, like this one. So this is the phenomenon what happens here. तो इसका मतलब देखिए कि जो भी नेगेटिव आयन है, this negative ion will be surrounded by positive ions of water molecules, that is hydrogen, and जो positive ion है that will be surrounded by negative, that is oxygen of this water molecule. That's why water is acting as a universal solvent, because water is a polar molecule which has the dipole, and that's why it helps in the dissolution process. वो dissolution process में क्या करता है, help करता है। तो उसी तरीके से तो हमारे वॉशिंग पाउडर जो होते हैं
जो निरमा, व्हील, रीन जो हम लोग यूज करते हैं ना अलग अलग, तो इसके अंदर क्या होता है कि सपोज ये अगर कोई ऑयली दाग है हमारे इसके अंदर कपड़े के अंदर और उसके ऊपर अगर कैटाइन्स एनाइंस है तो उसे हटाने के लिए इस तरीके से मॉलिक्यूल छोड़े जाते हैं। तो अगर ये एनायन है तो उसको कैटायन अटैच करते हैं, अगर वो कैटायन है तो उसे एनायन अटैच करते हैं, नहीं तो दूसरा क्लिंचिंग एक्शन ये होता है डायपोल इंड्यूस्ड। मतलब हमारा जो डिटर्जेंट होता है उसके अंदर ऑलरेडी डायपोल है, हमारे कपड़ों में जो दाग लगा है उसके अंदर डायपोल नहीं होता है तो उसके अंदर डायपोल इंड्यूस किया जाता है। तो ये नहीं तो ये दोनों फिनोमिना, ये दोनों प्रिंसिपल्स हमारे क्लिंचिंग एक्शन हमारे वॉशिंग पाउडर के अंदर यूज किए जाते हैं। तो जितने सारे कपड़े साफ करने के लिए हम लोग वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं सबके अंदर ये दोनों प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं, that is dipole induced interaction or ion dipole interaction. So whatever the ion, either it is cations or anions, that is surrounded by oppositely charged ions. So this cation is surrounded by, this anion is surrounded by cations of the water, and this cation is surrounded by anions of the water, that is oxygen of the water. This phenomenon is called as, okay, this is the molecule which is with the dipole, and this is ion. This is molecule with dipole, this is ion. This is called an ion dipole interaction. So one of the molecule which has the dipole surrounds the cations or anions accordingly with oppositely charged centers or ains, and then that will be removed, that will be cleansed. That is what you can say ion dipole interactions. Clear with this? So once we get what is a dipole, then this three becomes easy: dipole dipole interaction, dipole induced interaction, and ion dipole interaction. Now the two things are remaining, that is you can say London forces and hydrogen bonding. We'll discuss it in tomorrow's lecture. Clear with us? So thank you very much. See you tomorrow. Just be prepared with this theory of the topic: dipole dipole interaction, dipole induced interaction, and ion dipole interaction. So see you tomorrow with next two. Thank you very much. See you.